بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی جیت کو جس طرح ننگے انداز میں ہار میں تبدیل کیا گیا، اب الیکشن ٹریبیونلز اور عدالتوں کے اندر معاملات پہنچ گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج بڑی عام سماعت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو کچھ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ جنوبی پنجاب کے اندر 18 ایم پی ایز کو کس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے باقاعدہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے، کس کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ بھی ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے جو بجائی گئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تحریک انصاف کی ایک جیتے ہوئے شخص نے نشست واپس کی ہے اور اس غیرت مند شخص نے کس طرح پول کھول دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس انداز میں تحریک انصاف کی جیت کو ہار کے اندر تبدیل کیا گیا، بہت ساری بے ضابطگیاں ہوئیں اور خاص انداز کے اندر فارم 45 کے اندر جو ریزلٹس تبدیل ہوئے ہیں۔ عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہیں۔ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اس انداز سے ضرور تقسیم ہے کہ کچھ ہارڈ لائنر ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریشر سخت طریقے سے بنا کر رکھنا چاہیے، اور کچھ علی گور صاحب، شعیب شاہین صاحب یا آپ کہہ لیں رؤف حسن صاحب، یہ وہ شخصیات ہیں جو باقاعدہ طور پر جو ایک بر وقت کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کر سکے، کوئی وائٹ پیپر نہیں لا سکے، پوری تفصیلات جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکے۔ ہر حلقے کے اندر جو کچھ ہوا وہ انفرادی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے آیا، لیکن منظم انداز کے اندر بہت کچھ نہیں لایا گیا۔ لیکن اب ہمارا جو پروسیجر ہے، جو عدالتی سسٹم ہے، وہ اتنا اپاج نکمہ ہے کہ اس کے اندر کئی مرتبہ جو امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنا ٹنیور مکمل کر کے چلے جاتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا۔ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو 5 سال دھاندلی کے ساتھ ایم این اے ایم پی اے بن کر مکمل کر گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کراچی کی امیر ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے پورا جو کھیل ہے وہ بے نقاب کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ دراصل جو مجھے ایم پی اے کی نشست دی گئی ہے اس پر تحریک انصاف کا امیدوار جیتا ہوا ہے، اس پر ہمارے ووٹ کم تھے، لیکن جب ہم نے پریشر بڑھایا، جب ہم نے احتجاج کیا اور ہماری بہت ساری جو نشستیں ہیں جیتی ہوئی وہ ایم کیو ایم کے کھاتے میں ڈالی گئیں تو پریشر میں آ کر مجھے 4000 میرا ووٹ بڑھا دیا گیا، جبکہ فارم 45 کے مطابق جو ہم سے جیتا ہوا شخص ہے میرے سے وہ تحریک انصاف کا آزاد امیدوار ہے، لہذا میں یہ سیٹ نہیں لوں گا، میں یہ سیٹ واپس کر رہا ہوں اور یہ اس شخص کا حق ہے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں جو اصل میں ہماری جیتی ہوئی نشستیں تھی وہ واپس نہیں کی گئیں، لیکن یہاں پہ ہمیں جو ہے ایک نشست دے کے تو یہ کام ڈالا گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ ایک پورا پول جو ہے وہ کھلا ہے الیکشن کمیشن کا۔ انہوں نے کہا کہ میری یہ سیٹ الیکشن کمیشن کے منہ پر تماچا ہے، میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں۔ آزاد امیدوار سیف باری کے ووٹوں کو 31,000 سے کم کر کے 11,000 کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم نے 6,000 ووٹ لیے اور اسے 20,000 کر دیا گیا۔ اگر اللہ نے انہیں ہدایت دی تو ایم کیو ایم والوں سے بھی کہتا ہوں کہ سامنے آئیں۔ کل ایک صاحب ریاست مدینہ کا ذکر کر رہے تھے، ارے بھائی ان سے زیادہ آپ کو ووٹ دے کر جتوایا گیا، میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں، جو سیٹ ہماری ہے ہمیں واپس کی جائے، میں یہ پورا نظام الٹتا ہوں، جس کے جو سیٹ ہے اسے دی جائے۔ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہ تقریریں کر رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ پھر ایم کیو ایم نے جو کراچی کے اندر ڈاکہ ڈالا، ان کے حق میں ڈاکہ ڈالا گیا، وہ حکومت سازی کے اندر مصروف ہیں۔ انہوں نے رات کو جشن کے لیے ایک تقریب رکھی اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت تھوڑے سے لوگ آئے، یعنی آپ اگر جیتے ہوئے ہوں جینون طریقے سے تو پھر تو لوگ جوش و خروش سے آئیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر جو ہے وہ ان کا پورا جو پول ہے اس انداز کے اندر بھی کھولا گیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن، نگران حکومتیں اور ہمارا جو پورا 1 پیج ہے اس نے یہ سارا کام ظاہر کیا ہے۔ اب دوسری طرف خواجہ آصف جو ہے انہوں نے بھی اپنے پارٹی کو اور تمام سٹیک ہولڈر کو ایک بڑا مشورہ دیا ہے۔ وہ سیٹ تو ہار گئے ہیں لطیف کھوسہ سے اور انہوں نے ہار کو قبول بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈر سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کی فکر کریں، نفرتیں فیصلوں پر غالب نہیں آنی چاہیے، اپنی غلطیوں کا تجزیہ کیا جائے، دل کشادہ کیا جائے، اپنی جگہ رہتے ہوئے سچائی اور تدبر کی بات کی جائے، اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ تو انہوں نے بھی یہ میسج دیا کہ اس طرح کا گندا مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار جو ہے وہ جن کے نوٹیفیکیشن جاری ہو رہے ہیں یا فارم 47 کے اندر ابھی جن کو جو جیت گئے ہیں جینون طریقے سے، ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریک استحکام پارٹی
या फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो जाए, वरना उनके खिलाफ उनकी जो सीटें हैं वो उनको हरवा दी जाएंगी। और इस तरह का जो है वो एक बड़ी जो है वो खबर आई है। और ये खबर मैंने आपके सामने रखना है। सिद्दीक जान साहब ने भी ये खबर दी है, लेकिन साथ ही जो यहाँ पे अली मुमताज हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर दी है। और वो कहते हैं खबर ये है कि पीटीआई के 15 से 20 उम्मीदवार जो जनूबी पंजाब से सूबाई असम्बली की सीट जीते हैं, उन्हें कहा गया है कि आप जाकर अलीम खान और जहांगीर तरीन से मुलाकात करें और आईपीपी में शामिल हो जाएं। इन जीते हुए पीटीआई के उम्मीदवारों को 72 घंटे का वक्त दिया गया और यह धमकी दी गई है कि ना गए तो जीती हुई सीट हरवा दी जाएगी या सबक सिखा दिया जाएगा, यानी मुकदमात बनाएंगे। उधर से जो इदारे हैं वो मुतहरक होंगे, कोई नैब का केस होगा, कोई एंटी करप्शन का होगा। तो ये कैसे, देखिए, एक गुंडागर्दी है, कैसे एक बदमाशी का माहौल है। और ये खबर अगर दुरुस्त है तो इंतहाई जो है वो भौंडे अंदाज के अंदर ये सारा कुछ किया जा रहा है, यानी अवाम के मैंडेट को इस तरह जो है वो पांव तले रौंदना। ये आर्टिकल 6 अप्लाई होता है कानूनी एतबार से। लेकिन काजी फायद साहब वो पहले कहते थे कि जालिमों काजी आ रहा है और अब तो मजलूमों काजी सो रहा है। इस तरह की जो सदाएं हैं वो आ रही हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो अब जो मामला है वो अब देखिए कि राजा बशारत का जो हल्का है ये NA-55 है, इसका अंदर एक और बड़ा ब्लंडर किया गया है। इसके अंदर जो कास्टिंग वोट है उसकी तादाद को बढ़ा दिया गया है। फॉर्म 47 एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है, यानी देखिए कोई पूछने वाला नहीं है। इतनी सरेआम जालसाजी हो रही है। मीडिया के ऊपर वो फॉर्म चल चुका है जो कि गलत था, फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं था वो भी रिजल्ट, लेकिन फिर इसको तब्दील किया गया है। और फॉर्म 47 के अंदर 2 दिन पहले जो फॉर्म 47 जारी हुआ, तमाम मीडिया चैनल ने भी वही रिपोर्ट किया जिसका सबूत मौजूद है। और आज दोबारा जारी होने फॉर्म 47 पिछली बेज़ाब्तियों को छुपाने के लिए भरपूर कोशिश की गई। अवामी मैंडेट पर इस तरह से डाका नहीं डालने देंगे। टर्न आउट 40 से बढ़ाकर 55% यहाँ पे कर दिया गया है और कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई। अवाम ने एस्टैब्लिशमेंट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PDM प्लस जितनी पार्टीज थी उनके खिलाफ वोट दिया है, तो कुछ ना कुछ तो जो रिस्पेक्ट है उसको रखना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो है मामलात गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वहां पर भी दरखास्तें दी गई हैं, बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने रोक दिए हैं। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे जो समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब केस जस्टिस आमर फारूक के पास जाता है तो लोगों को पहले ही पता होता है कि क्या फैसला होना है। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमीर हुसैन भट्टी, उनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्रमोट नहीं किया गया। इसकी क्या वजूहात हैं ये अलहदा वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि 5 असामियां इस वक्त जजेस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खाली हैं। और उस वक्त जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे काजी फायद साहब, उस वक्त उनका क्या मौकफ था और अब क्या मौकफ है, ये इस पर हम अमल उनका क्या है ये बात हम करेंगे। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ आदम नदीर तारड़ वो मरियम नवाज के वकील है और उन्हीं के ग्रुप का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो सदर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको वकील किया है, यानी आदम नदीर तारड़ ही हर जगह असल में जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर जो है वो मरियम नवाज के जो वकील हैं आदम नदीर तारड़, उन्होंने आज दलाइल दिए और पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फरूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा कि हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने उनको टोका और कहा कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं केस नहीं सुनूंगा। आदम नदीर तारड़ ने जो है वो वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि अदब से बात करें, जिस पर वकील ने उनको जवाब दिया कि आप कौन होते हैं मुझे बात करने से रोकने वाले। जस्टिस अली बाकर ने कहा कि मैं किसी बार काउंसिल के नुमाइंदे के खिलाफ यहाँ बात नहीं सुनूंगा, यानी बार काउंसिल का नुमाइंदा है आदम नदीर तारड़, मैं सिर्फ उसी का सुनूंगा। अब जज का अंदाजा करें, हालांकि आपके सामने एज ए वकील जो है वो सारे बराबर हैं। वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा कि अदालत में अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सूबाई नशिस्तों पर फॉर्म 47 जारी करते हुए आरओ उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने का पाबंद नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन का जो वकील है उन्होंने आज आदम जो है उन्होंने शहजाद शौकत जो है उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाद 100 के करीब शिकायत समाअत के लिए मुकर्रर है। उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल फोरम बनता है, यानी नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद ट्रिब्यूनल होगा, ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे, फिर उसके खिलाफ शिकायत होगी तो फिर हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट से शिकायत होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये इस तरह
ये एक पूरा जो है वो बन रहा है स्टेज। उम्मीदवारों की कामयाबी के हतमी नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल फोरम बनता है। इब्तदाई स्टेज पर इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायत को सुन रहा है। अभी ये शिकायत आ रही हैं गिनती वगैरह की, इस पर फैसले कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हतमी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ऐलान करेगा। सूबाई नशिस्तों पर फॉर्म 47 जारी करते हुए आरओ उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने का पाबंद नहीं है। लेकिन जो सबसे भोंडे दलाइल दिए वो आदम नज़ीर तारड़ ने दिए, जो कि मैक्सिमम झूठ पर मबनी थे। और लेकिन उन्होंने उसके अंदर मरियम नवाज के वकील की हैसियत से उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ केसेस की जजमेंट्स उन्होंने पेश की, और उन्होंने कहा कि इन जजमेंट्स में वाज़ेह लिखा हुआ है कि उम्मीदवार पहले इलेक्शन कमीशन जाएंगे, इसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए। फॉर्म 45 में बहुत सी तब्दीलियां की जा सकती हैं। फॉर्म 47 की तैयारी के वक्त तमाम उम्मीदवारों के एजेंट या कई खुद मौजूद थे। हम अदालत में रिकॉर्ड पेश करेंगे जिससे जाहिर होगा कि तमाम उम्मीदवारों के एजेंट और उम्मीदवार मौजूद थे। टेलीफोन का रिकॉर्ड, जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड अदालत पेश करेंगे। आरओ ऑफिस में फॉर्म 47 जारी करते हुए बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आरओ ऑफिस के बाहर जो जीत रहा होता है उसके नुमाइंदे खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर टकराव हो रहे थे, तो इसलिए इंतजामिया ने कार्रवाइयां की कि वहां पे आपस के अंदर लड़ाई ना हो जाए। अलीम खान की कामयाबी, नवाज शरीफ की जो किया गया उस पर भी ख्वाजा आसफ वो बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये ख्वाजा आसफ ने इस तरह जाली मैंडेट लिया है, तो ये फैसला महफूज कर लिया जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने। लेकिन ये महफूज फैसला मुमकिन है किसी भी वक्त सुना दिया जाएगा, और उनको शायद कोई ज़्यादा इंसाफ की उम्मीद नहीं है जिस तरह तहरीक इंसाफ समझती है, बल्कि उनको दोबारा इलेक्शन कमीशन भेजा जाएगा, फिर ये मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर। तो ये एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया जाएगा। हालांकि मामला बड़ा सीधा है। फॉर्म 45 मंगाएं, आप उसका फ्रांसिक करवाएं और उसके साथ ही जो है फॉर्म 47 को मैच करें, और सीधा ये 2+2 4 फार्मूले के तहत पूरा जो चोरी डकैती है वो पकड़ी जा सकती है। लेकिन बहरहाल सिस्टम ऐसा है, इस सिस्टम के अंदर उम्मीद नहीं है कि किसी तरह रिलीफ मिले। अगर 5-7 नशिस्तें शायद किसी तरीके से मिल जाएं, लेकिन मजीद अदालती जंग तो क्या लड़नी है। अब तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार आज़ाद जीते हैं उनको दूसरी पार्टीज में ज़बरदस्ती जो है वो शामिल करने की ये जो खबरें हैं ये बड़ी तशवीशनाक हैं। इस हवाले से मजीद भी जो हक़ाइक़ आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।